غازی آباد کے ایک گاؤں میں ایک پرانی مگر مشہور چکن رول کی دکان تھی، جہاں لوگ دور دراز سے آتے اور اپنے من پسند چکن رول کھاتے۔ گاؤں میں ایک آدمی جس کا نام شرما جی ہے، یہ بہت ہی کنجوس انسان تھا۔ اس کو چکن رول کا ذائقہ اتنا پسند تھا کہ وہ روز اس دکان پر آتا، لیکن جب پیسے دینے کا وقت آتا تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا۔ ایک دن دکان کے سامنے ایک نئی چمچماتی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس کے ٹائر میں 1000 کا نوٹ پھنسا ہوتا ہے۔ ایک دن دکان کے سامنے ایک نئی چمچماتی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس کے ٹائر میں 1000 کا نوٹ پھنسا ہوتا ہے۔ شرما جی کی نظر اس نوٹ پر پڑتی اور ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ شرما جی سوچتے ہیں، اگر یہ نوٹ مل جائے تو بہت دن تک چکن رول فری میں کھا سکتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنا رول کھانا شروع کر دیتا ہے، مگر ان کی نظر ہمیشہ اس نوٹ پر ہوتی ہے۔ دکان پر اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنا کھانا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ شرما جی گاڑی کے چلنے کا انتظار کرتے ہیں، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اور چل پڑتی ہے، شرما جی تیزی سے اٹھتے ہیں، مگر یہ کیا؟ دکان کے سب لوگ اپنا چکن رول چھوڑ کر اس نوٹ کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ شرما جی شوق میں کھڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب سب لوگ نوٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک بچہ نوٹ پکڑتا ہے اور شرما جی کے پاس لے کر آتا ہے۔ بچے کا کہنا ہوتا ہے، انکل یہ لو آپ کا نوٹ۔ شرما جی حیران ہو کر بچے سے پوچھتے ہیں، یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ بچے نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے پتہ تھا آپ کو پیسے دینا اچھا نہیں لگتا، اس لیے یہ آپ کے لیے۔ شرما جی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا سبق۔ شرما جی نوٹ واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، نہیں بیٹا، یہ تم رکھو۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ اصلی خوشی پیسے سے نہیں، انسانیت سے ملتی ہے۔ لیکن تب گاڑی کا مالک آ کر نوٹ کو دیکھ کر سب کو بلاتا ہے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ مالک مسکراتا ہوا کہتا ہے، یہ نوٹ میں نے یہاں چھوڑا تھا ایک چھوٹے سے کھلونے کے لیے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سب لوگ اس نوٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب سب کو ایک بات سکھانی چاہیے، خوشیاں بانٹنے سے اور بڑھتی ہیں، نہ کہ چھیننے سے۔ اس بات پر سب لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اور شرما جی بھی اپنی کنجوسی کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کے ساتھ زندگی جینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ شرما جی کے دل میں ایک نئی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ دکان میں واپس آتے ہیں، انہیں اپنے آپ میں ایک بدلاؤ محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنے رول کے ساتھ ایک اور نوٹ نکالتے ہیں اور دکان کے سب سے پہلے بچے کو دیتے ہیں۔ اس بچے کے چہرے پر ایک انوکھی خوشی پھیلتی ہے۔ شرما جی مسکرا کر سوچتے ہیں، اصلی خوشی تو انسانیت اور دیا میں ہے، پیسے تو بس ایک سادہ چیز ہیں۔ اس دن کے بعد غازی آباد کے لوگ انہیں نئے روپ میں جانتے ہیں، دل والے شرما جی، جو ہر کسی کے ساتھ پریم اور اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں خوش رہتے ہیں۔ اس داستان کا دور ایک دور کے گاؤں کی ہے، جہاں کھانا پکانے کا ماہر ایک گھریلو بندہ تھا۔ اس کا خاص مشہور تھا ایچاری چکن، جو اس نے خود بنایا ہوا تھا، اور لوگ اس کے ایچاری چکن کو بہت پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس سے پیسے کمانے لگا تھا۔ آخر کار ایک دن ایک اور شخص، رضوان، اس کے سامنے ایک دکان کھولتا ہے، جہاں وہ بھی ایچاری چکن فروخت کرنے لگتا ہے۔ محمود، گاؤں کا ماہر ایچاری چکن، اس بات سے ناخوش ہو جاتا ہے کہ اب اس کی فروخت کم ہونے لگے ہے۔ تم کیا کر رہے ہو رضوان؟ یہ میری جگہ ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہ تم کسی کو دکان کھولنے سے منع کرو؟ یہ آزادی کا دور ہے محمود بھائی۔ لیکن میری محنت کی دکان ہے۔ تو محنت کیا کرتا ہے؟ میری محنت بھی تو ہے۔ اس کے باوجود محمود کو رضوان کو دکان سے نکالنے کا کوئی حل نہیں ملتا۔ وہ پریشان ہو کر اپنے دوست فیصل سے مشورہ لینے جاتا ہے۔ فیصل بھائی، میں بہت پریشان ہوں۔ رضوان نے میری دکان کے سامنے اپنی دکان کھولی ہے
और मेरे किसानों को मेरी दुकान से दूर कर रहा है। ये तो बहुत बदकिस्मती है महमूद भाई, लेकिन इसका कुछ किया जा सकता है। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसकी दुकान को खराब कर दूं। नहीं महमूद भाई, ऐसा करना गिरेबान हिलाने की बजाय मसला बढ़ा देगा। फिर मैं क्या करूं? तुम्हारे उसूलों पर चलने का अंदाज बदलो। अपने मश्तरियों को बेहतर खिदमत फराहम करो और अपने इचारी चिकन का मकाम मजबूत बनाओ। तुम बहुत ही दुरुस्त कह रहे हो फैसल भाई। शुक्रिया। महमूद इस नसीहत पर अमल करता है और अपनी दुकान की खिदमत को बेहतर बनाता है। इसके नतीजे में इसकी फरोख्त में इजाफा होता है और वो रिजवान की दुकान की मुकाबलत में मजबूत हो जाता है। निहायत अखीर रिजवान भी महमूद के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है, जिससे दोनों की दुकानों को बेहतरीन मेयार की खिदमत फराहम होती हैं और गांव की मईशत में बेहतरी आती है। महमूद की दुकान की बेहतरी और फैसल की रहनुमाई से गांव की जिंदगी में नया रंग आने लगता है। लेकिन एक दिन एक अनजाने शख्स नए तरीके से आता है। इसका नाम अजीज है। महमूद साहब, मैंने सुना है कि आपकी इचारी चिकन बहुत मशहूर है। क्या मैं भी आपके साथ काम कर सकता हूँ? तुम कौन हो और तुम्हारे पास कौन सी महारत है? मेरी महारत देखकर अब भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ते कह, लेकिन मैं तुम्हें अपनी महारत दिखाने की इजाजत दूंगा। अजीज खुशी से रोशनी का धंधा ले आता है। एक हफ्ते बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। महमूद भाई, तुम्हारी दुकान पर एक बड़ा हादसा हुआ है। क्या हुआ? तुम्हारी दुकान जल गई है और मालूम हुआ है कि इसका आगाज अजीज ने किया है। महमूद शौक से इसकी तरफ दौड़ता है। इसके दिल में गुस्सा और हसरत का मखलूत एहसास है। अजीज, तुमने मेरी दुकान को क्यों जलाया? महमूद साहिब, मैंने सोचा कि अपनी दुकान के साथ साथ आपकी दुकान को भी खत्म कर दूं ताकि मेरी दुकान हमेशा के लिए मशहूर हो जाए। महमूद के दिल में अफसोस का दरिया बहने लगता है। इसके असल दोस्त का ये रवैया इसे बहुत शौक में डालता है। फैसल, महमूद भाई, अब की तवज्जो अजीज की कार्रवाइयों पर मरकूज करने के बजाय अब हमें अपनी दुकान की तामीर करनी होगी। महमूद, तुम बहुत ही दुरुस्त कह रहे हो फैसल भाई। मैंने अपने दोस्त को अपना मेहनती और ईमानदार दोस्त समझा था, लेकिन वो इसी दोस्त की तरह नहीं निकला। इस वाक़ये ने महमूद को अजीज की हकीकत से आगाह कर दिया। वो अपने उसूलों पर चलने की बजाय अपने दोस्तों की असलत को जानने का अहमियत समझता है और अब वो अपनी दुकान की तामीर के लिए फैसल की मदद से सरगर्म होता है, उम्मीद करते हुए कि इस दफा इंसाफ की राह पर चलेगा। इस दास्तान का दौर एक दौर के गांव की है, जहां खाना पकाने का माहिर एक घरेलू बंदा था। इसका खास मशहूर था इचारी चिकन, जो उसने खुद बनाया हुआ था और लोग उसके इचारी चिकन को बहुत पसंद करते थे। यहां तक कि वो इससे पैसे कमाने लगा था। आखिरकार एक दिन एक और शख्स, रिजवान, इसके सामने एक दुकान खोलता है जहां वो भी इचारी चिकन फरोख्त करने लगता है। महमूद, गांव का माहिर इचारी चिकन, इस बात से नाखुश हो जाता है कि अब उसकी फरोख्त कम होने लगे है। तुम क्या कर रहे हो रिजवान? ये मेरी जगह है। तो कौन होता है कि तुम किसी को दुकान खोलने से मना करो? ये आजादी का दौर है महमूद भाई। लेकिन मेरी मेहनत की दुकान है। तो मेहनत क्या करता है? मेरी मेहनत भी तो है। इसके बावजूद
महमूद को रिजवान को दुकान से निकालने का कोई हल नहीं मिलता। वो परेशान होकर अपने दोस्त फैसल से मशवरा लेने जाता है। फैसल भाई, मैं बहुत परेशान हूं। रिजवान ने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोली है और मेरे किसानों को मेरी दुकान से दूर कर रहा है। ये तो बहुत बदकिस्मती है महमूद भाई, लेकिन इसका कुछ किया जा सकता है। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसकी दुकान को खराब कर दूं। नहीं महमूद भाई, ऐसा करना गिरेबान हिलाने की बजाय मसला बढ़ा देगा। फिर मैं क्या करूं? तुम्हारे उसूलों पर चलने का अंदाज बदलो। अपने मश्तरियों को बेहतर खिदमत फराहम करो और अपने इचारी चिकन का मकाम मजबूत बनाओ। तुम बहुत ही दुरुस्त कह रहे हो फैसल भाई। शुक्रिया। महमूद इस नसीहत पर अमल करता है और अपनी दुकान की खिदमत को बेहतर बनाता है। इसके नतीजे में इसकी फरोख्त में इजाफा होता है और वो रिजवान की दुकान की मुकाबलत में मजबूत हो जाता है। निहायत अखीर रिजवान भी महमूद के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है, जिससे दोनों की दुकानों को बेहतरीन मेयार की खिदमत फराहम होती हैं और गांव की मईशत में बेहतरी आती है। महमूद की दुकान की बेहतरी और फैसल की रहनुमाई से गांव की जिंदगी में नया रंग आने लगता है। लेकिन एक दिन एक अनजाने शख्स नए तरीके से आता है। इसका नाम अजीज है। महमूद साहब, मैंने सुना है कि आपकी इचारी चिकन बहुत मशहूर है। क्या मैं भी आपके साथ काम कर सकता हूं? तुम कौन हो और तुम्हारे पास कौन सी महारत है? मेरी महारत देखकर अब भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ते कहे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी महारत दिखाने की इजाजत दूंगा। अजीज खुशी से रोशनी का धंधा ले आता है। एक हफ्ते बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। महमूद भाई, तुम्हारी दुकान पर एक बड़ा हादसा हुआ है। क्या हुआ? तुम्हारी दुकान जल गई है और मालूम हुआ है कि इसका आगाज अजीज ने किया है। महमूद शौक से इसकी तरफ दौड़ता है। इसके दिल में गुस्सा और हसरत का मखलूत एहसास है। अजीज, तुमने मेरी दुकान को क्यों जलाया? महमूद साहिब, मैंने सोचा कि अपनी दुकान के साथ साथ आपकी दुकान को भी खत्म कर दूं ताकि मेरी दुकान हमेशा के लिए मशहूर हो जाए। महमूद के दिल में अफसोस का दरिया बहने लगता है। इसके असल दोस्त का ये रवैया इसे बहुत शौक में डालता है। फैसल, महमूद भाई, अब की तवज्जो अजीज की कार्रवाइयों पर मरकूज करने के बजाय अब हमें अपनी दुकान की तामीर करनी होगी। महमूद, तुम बहुत ही दुरुस्त कह रहे हो फैसल भाई। मैंने अपने दोस्त को अपना मेहनती और ईमानदार दोस्त समझा था, लेकिन वो इसी दोस्त की तरह नहीं निकला। इस वाक़ये ने महमूद को अजीज की हकीकत से आगाह कर दिया। वो अपने उसूलों पर चलने की बजाय अपने दोस्तों की असलत को जानने का अहमियत समझता है और अब वो अपनी दुकान की तामीर के लिए फैसल की मदद से